नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूं खीमानंद और दोस्तों अभी मैं आया हूं इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2024 में, जो कि यहां पर लग चुका है प्रगति मैदान में। आज कल और परसों ये 3 दिन तक चलने वाला है। तो यहां पर आपको फुटवेयर से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां आ रखी हैं, जहां पर आपको कुछ मशीनरीज दिख जाएंगी। जो भी फुटवेयर बनाने की मशीनरीज होती हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको फुटवेयर बनाने में जितने भी मटेरियल चाहिए होता है वो सब चीज़ दिख जाएगा। तो काफ़ी बड़ा सा एक्सपो है जहाँ पर आपको बहुत सारे वेंडर मिलेंगे। फुटवेयर के जितने भी मटेरियल होते हैं वो मिल जाएंगे, प्रिंटिंग वाली मशीन्स मिल जाएंगी, मोल्ड मिल जाएंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं इस एक्सपो को विजिट करके कि यहाँ पर क्या है। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप फुटवेयर इंडस्ट्री से हैं और आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये 3 दिन चलने वाला है प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 और 6 में ये लगा हुआ है। तो चलिए विजिट कर लेते हैं इस एक्सपो को और देख लेते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर इसी तरीके के बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, एक्सपो विजिट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, राइट नाउ वी केम टू अनदर स्टॉल। So this company is one of the well-known company from Taiwan. So they have installed their machine here. So let's see what is the purpose of this machine, and let's talk with ma'am and understand about the company and the machine. Hello, ma'am. How are you? Hi, good morning. Was very welcome to join this report, and I would like to also take this opportunity to introduce about what is the history of EV injection in India. Okay, so first just tell me about your company and about yourself as well. After that, we will talk about this machine. Okay, so Tiankang is a Taiwan oriented company. We have the 2 factories. One is in Taiwan and the other one is in China. So we most focus on the footwear manufacturing, footwear machines. So our company has been founded for 42 years and have been working in Tiankang for this year, 30 years already. That's great. So, and I hope you have already supplied this kind of machinery in India. So, like how many clients you already have in India? You could say that we started the Indian business more than 35 years. So now the top 15 brands like Relaxo, Paragon, Vicasi, Wakaro, Aqualine, all are our core customers. And because by the development of the Indian footwear industry, we supply different type of machines. And right now, the most, the popular one is the EV injection machine, which we are demonstrating right now in this fair. Okay, so now let's talk about this machine. So this one is injection machine, right? Yes, yes. What is the exact name of this machine? This is called EVA injection machine. In the process of EVA molding, actually there are several different type of way, but the most popular one, and you can get the higher output, is by this kind of EVA injection process. This is like if you are familiar with the international brand called the Crocs. Basically, the Crocs shoes are produced by this type of machine with our machine in many countries in the world. All right, so now let's see this machine. The concept of the EVA molding is different from the regular PVC molding because in the molding of PVC is like a one-to-one concept. But in the EVA concept, it's like you can see the actual size of the product is larger than the cavity size in the mold. So that means that there is a very important procedure that you should control how to expand the size right after the mold opening. So that is why the EVA injection machine require more precise control in the complete process of production. So the way to do is that you have the material loading from the backside of the injector. Maybe we can go a little bit from the backside of the machine to see the complete procedure here. So in the backside, that you can see there are 2 injectors. So then in each injector, that you can put different type of the colors. So that means there are 2 different type of single colors can be injected into the mold on the same time. So then the material will be transferred through the barrel by melting.
and then the injector will inject the material into the cavity of the molds. So, but you need to do a certain curing process to do the cross-linking effect to make the shoes to be real cured. Then there is about like the process about 380 seconds. Then the mold will open. And then you will see it's like a expansion of the shoes right after the mold opening. Then later we will bring you to the front of the machine to see this kind of operation. So you can see actually this is the shoes which has been taken out from the cavities. And after the shoes are taken from the cavity, the shoe is still very hot. It's about, because the temperature mold is about 165 degrees. So when you take out the shoes, the contraction of the shoe size is not yet complete. So you need to put the last into the shoe to keep the shape. And then after in this way, because we don't have the post-curing control conveyor, so we just simply put the last into the shoes and waiting to let it cool down completely, then you can remove the last. Okay, so you have different size of the die on the same set. Yes. Basically, you can put the different sizes in the same mold, but there is a certain, principle like you cannot jump over the size about two sizes different to get a very good quality control. Okay, so and this one is like, what is the exact material? This one is rubber, right? No, actually this is EVA. This is another rubber, but they belong to the same group. Both are thermoset material. Okay. So if you like to get more information about Tiankai and also EVA injection machine, then you can simply just access to YouTube, and then you will see all the details for the machine operation. Well, just tell me once, what is the website name? Website name is www.tien.com. Sorry, repeat again. The website is www.tienkang.com.tw. Okay, so we got all the information about this machine. This is the like shoe molding machine, EVA molding machine, just like other injection molding machine. But this one works for shoe industry, rubber industry. Yeah. So if anyone wants more information, they can visit their website. That one is www.tienkang.com. So I'll mention here, so you can visit the website and you can get all the information. Thank you. अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल पे आ गए हैं, तो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग तरीके की आपको मशीन्स वगैरह मिल जाते हैं. तो मैम से बात करते हैं और समझते हैं कंपनी के बारे में, और उसके बाद मशीन्स भी देखेंगे. तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर. सर हमारी कंपनी है कीथ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो नारायणा में बेस्ड है. हम यहाँ पर लेज़र का पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेज़र कटिंग से लेकर लेज़र मार्किंग तक का. तो हमारी जो फर्स्ट मशीन है वो है CGT के नाम से हम जानते हैं, ग्लास ट्यूब के साथ आती है. ये जो आपके सोर्स होते हैं टीवी लेजर्स, उस पर आप किसी तरह की मार्किंग कर सकते हैं. ये रिलैक्सो जैसे कस्टमर्स हमारे हैं सर. ठीक है, तो इस तरीके की जो डिज़ाइंस होती है वो इस मशीन से कर सकते हैं. तो क्या नाम क्या बताया मैम इसके? इसको हम CGT कहते हैं सर, लेज़र CO2 और लेज़र मार्किंग मशीन. ठीक है, CO2. अच्छा, जो लेज़र मार्किंग होती है जैसे वो अलग अलग प्रोडक्ट में होता है, तो ये इस प्रोडक्ट पे काम करेगा? जी सर. तो ये और भी प्रोडक्ट पे काम करता है सिर्फ इस तरीके के? नहीं सर, आप इस पे पेपर पे भी मार्क कर सकते हैं. जी सर. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो जो के साथ आती है सर, ग्लास ट्यूब के साथ आप इसे यूज़ करते हैं. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो ये मशीन आप लोग बनाते हैं या इम्पोर्टेड होता है, कैसे होता है? सर हमारे पास इम्पोर्टेड भी है और हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं. ठीक है मैम. तो इस तरीके के सोल्स पे जो डिजाइनिंग होगी वो इस मशीन, जो बेड एरिया रहता है सर वो 300 बाई 300 mm और 600 बाई 600 mm के साथ आता है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. इसके अलावा जो आगे है ये क्या काम करता है मैम? ये सर हमारा यूविंग की लेज़र मशीन है, जिसका एरिया 1600 बाई 1000 mm के साथ है, डबल हेड के साथ है सर. ठीक है. तो इससे क्या एग्जैक्टली काम क्या होता है? आप इस पे MDF, एक्रेलिक, PVC, फैब्रिक, लेदर, वैक्सीन आप कटिंग कर सकते हैं सर. अच्छा, जो CNC मशीन बोलते हैं उस टाइप का होता है? नहीं, CNC सर डिफरेंट है, ये लेज़र है, लेज़र मार्किंग है. उसमें ब्लेड टूल होता है, इसमें लेज़र टूल के साथ आप यूज. अच्छा, ये मार्किंग के लिए है? नहीं, कटिंग के लिए सर, कटिंग प्लस इंक्रीन.
ठीक है, CNC मशीन भी तो कटिंग करता है, वो मेटल को कटिंग करता है। वो मेटल को और या आपका जो होता है मार्बल, उसके लिए होता है, जो शूज़ के अपर से इसकी कटिंग। अच्छा, तो इस तरीके की जो डिजाइनिंग होती है वो इस मशीन से होती है। जी। इसकी स्पीड वगैरह क्या रहती है मैम? सर देखिए, इसमें जो वोल्टेज आती है, 3 तरह की वोल्टेज आते हैं। आपका मटेरियल कितना थिक है उस पर डिपेंड करता है। 80 वाट की ट्यूब के साथ आता है, 100 वाट, 130 वाट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आग मटेरियल टू मटेरियल आपका कितनी उसकी थिकनेस है, उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आगे भी बहुत और कुछ है, उसको भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर कुछ और 1-2 मशीन है, इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जी मैम। सर ये जो हमारी तीसरी मशीन है, फाइबर मार्किंग मशीन है। जैसे कि उसमें जो सोर्स है वो CO2 है, इसमें जो है आपका फाइबर का सोर्स है। इसका जो वर्किंग एरिया होता है वो आपका 170 बाई 170 mm, 200 बाई 200 mm, 300 बाई 300 mm, इस एरिया में ये उपलब्ध होता है। ये पूरी सेटअप मशीन के साथ आता है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ आएगा आपका। इसमें आप सर मेटल, नॉन मेटल पे मार्किंग कर सकते हैं। ये कस्टमाइज गिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे ये इस तरह की मार्किंग आप इसमें कर सकते हैं। तो ये फुटवेयर इंडस्ट्री के में काम आता है, कहीं और भी काम? आप कस्टमाइज़ करने के लिए मेटल, नॉन मेटल उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। जैसे जो है उसमें मेटल, नॉन मेटल नहीं कर सकते, आप इस पे मेटल, नॉन मेटल का कर सकते हैं। हाँ, जैसे जो LED लाइट्स वगैरह बनती है, CCTV कैमरे बनते हैं, उसमें भी वो मार्किंग। हाँ, उसमें कस्टमाइज़ के लिए आप करते हैं। कस्टमाइज़ गिफ्ट्स के लिए पेन्स हो गए सर, आपके चार्जर्स हो गए। जैसे हमारी नोरसिस है, वो हमारा कस्टमर है सर। ओरिएंट क्राफ्ट है, वो हमारे कस्टमर्स हैं। कस्टमर बेस हमारा सर ये रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये आगे ये मशीन क्या काम करता है मैम? ये भी यहाँ पे लेज़र मशीन है, जैसे वो है, वो इम्पोर्टेड मशीन है। ये यहाँ का हमारा मैन्युफैक्चरिंग खुद का है, नवेजर टेक्नोलॉजी के नाम से ये हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। जो इसका वर्किंग एरिया होगा वो 2 बाई 3 फीट का होगा सर। अच्छा, ये भी कटिंग के लिए यूज होता है? हाँ, ये भी कटिंग के लिए होता है। आप इस पर फैब्रिक जैसे ही कट रहा है आप देख सकते हैं, एक्रेलिक, MDF आप कटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट वाट कितनी उसकी थिकनेस है उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं सर। तो ये अभी तो फुटवेयर इंडस्ट्री में इस तरीके के जो सोल कटिंग के लिए होता है। हाँ, अब देखिए जैसे GMD फुटवेयर का आप नाम सुना होगा आपने, वो हमारे कस्टमर है, उनका सैंपल्स है। अच्छा, तो इस तरीके के हाँ। अभी जो भी पार्ट्स बनेंगे, फीते वगैरह बनेंगे, तो यहाँ से इजीली कट जाएंगे। हाँ जी सर। और जो ये ऊपर की डिजाइनिंग मार्किंग जो है फिर आप उस मशीन से CGT से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक कंपनी है, वो लेजर के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। लेजर मशीन्स, कटिंग प्लॉटर्स, वेल्डिंग मशीन, मेटल कटिंग, प्रेस ब्रेक, स्प्लाइसिंग मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में आप यहाँ से डील कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कार्ड है, इसमें आपको फ़ोन नंबर है और सारी जानकारी है, एड्रेस है। आप यहाँ से जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम का फ़ोन नंबर है, मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है फुटवेयर इंडस्ट्री का या उसके अलावा भी, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर में एक स्टॉल पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ मशीन्स मिलती हैं। तो सर से बात करते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, फिर यहाँ पर मशीन है उसको देख लेते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताइए, आप लोग कहाँ से हैं और किस टाइप के चीज़ों पे आप डील करते हैं? सर ये कंपनी लुधियाना बेस्ड कंपनी है और हम लोग इस निटिंग इंडस्ट्री में 1957 से हैं। और मेरी कंपनी का नाम मस्ताना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। और हम लोग निटिंग मशीन्स हो गया, सर्कुलर निटिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, और काफ़ी मशीन्स में हम लोग ऑलरेडी डील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जी। और जो आप ये मशीन्स देख रहे हैं, ये निटिंग इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन मशीन है ये। तो जो कंपनी बेस है, ये चाइनीज़ कंपनी है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और 85 to 90 पेयर्स ये लोग अपर सप्लाते हैं जेंट्स का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आगे देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है मशीन। ये मशीन कैसे काम कर रहा है वो देखते हैं और आपको भी प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी दोस्तों देख सकते हैं, ऊपर जो है यहाँ पर धागे लगे हुए हैं और नीचे जो है यहाँ पर मशीन काम कर रही है। तो ये बेसिकली जो फुटवेयर के जो चीज़ें होती है उसको ये जैसे कपड़े बनाया जाता है, बुना जाता है, जो वीविंग होती है उस तरीके से ये कर रहा है। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा, ये कैसे काम कर रहा है? सर ये निटिंग मशीन है, 14 गेज 14 गेज है। और ट्विस्टर यार्न लगा हुआ है, इसमें हॉट मेल यार्न लगता है, इलास्टिक लगता है। इन सबको कंबाइन करके ये निटिंग ऐसे तो मैं कभी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा वो कैसे करते हैं। नीडल्स के साथ ये निटिंग होता है और नीडल ड्रॉप आउट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जो प्रोडक्ट है वो दिखाएंगे सर एक बार, तो हमें समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो जैसे ये हो गया जी, इस तरीके का चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के जो भी, ये कहाँ पे यूज़ होता है? सर ये शूज़ अपर, स्पोर्ट शूज़ के लिए। ठीक है, तो जो जितने भी शूज़ में जो अपर में जो फैब्रिक लगता है वो सब इस तरीके से हाँ, इसी तरीके से बनता है, बिल्कुल इसी तरीके से बनता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ होती है दोस्तों, जो आपने देखा होगा जूते के ऊपर जो लगता है वो जो है अभी इसमें से बन रहा है। तो ये पूरा इसमें से जैसे कपड़े की मशीन जो है कपड़े की बुनाई करती है, उस तरीके से ये इसके बुन करके ये मशीन बना रहा है। तो इसकी क्या कैपेसिटी वगैरह क्या होती है? सर ये 1.5 किलोवाट की मशीन है, सिंगल फेस होती है। और तो वही है सर, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, एसी मस्त होता है इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो और ये जो डिजाइनिंग है ये कंप्यूटर से कैसे डलता है? सर इसका सॉफ्टवेयर आता है अलग से। अच्छा, तो जो भी डिज़ाइन हम डालेंगे वो बना देंगे? हाँ, जो भी हम लोगों का माइंड सोच सकता है डिज़ाइन के बारे में, वो हम लोग वो बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की मशीन यूज होती हैं और इस तरीके से बनती हैं। यहाँ पर दोस्तों और भी डिज़ाइन है इस तरीके के, आप देख सकते हैं। इस तरीके के जो भी स्पोर्ट्स शूज़ में जो ऊपर लगता है वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक और डिज़ाइन है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर बन जाती है। तो आप देख सकते हैं ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी टाइम, कितना टाइम लग जाता है एक को बनाने में? सर सिंगल पीस को बनाने में 8 से 10 मिनट की काफ़ी टाइम लगता है, मतलब इतने निटिंग होने में टाइम लगता है। 8 मिनट का पीस होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर जो है कंपनी का सारा डिटेल है, आपको यहाँ पर कंपनी का डिटेल है। अगर आप लोगों को इस तरीके कोई चीज़ चाहिए तो आप इनसे आप फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह करके आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के आपको यहाँ पर बहुत सारे मशीन मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो फुटवेयर इंडस्ट्री का सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मशीन्स हैं और आपकी जो भी यहाँ पर नीलगिरी वालों का स्टॉल लगा हुआ है मोल्डिंग मशीन का। तो फुटवेयर का मशीन हो गया, और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस मशीन के बारे में, फ्यूजिंग मशीन हॉट एंड कोल्ड। तो इस तरीके के जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं वो इस मशीन से बनते हैं। तो फुटवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारे मशीन चाहिए होते हैं, तो उनमें से यहाँ पर आपको कुछ एक मशीन्स दिख जाएंगे, इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ पर फुटवेयर इंडस्ट्री के जितने भी मशीन्स होते हैं वो सबके बहुत सारे वेंडर आ रखे हैं। अगर आप लोग इस तरीके का कोई इंडस्ट्री है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों ये जो सीने वाली मशीन होती है, फुटवेयर शीविंग मशीन, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे मशीन है, इस तरीके की बहुत सारी जो मशीनरीज वगैरह होती है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे भी एक मशीन है इस तरीके का। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर फुटवेयर एक्सपो में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी है, ये मशीन है इस तरीके का। और आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारे मशीनें, कटिंग है, मोल्डिंग है, इस तरीके के बहुत सारे मशीन्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों इस तरीके के यहाँ पे जो लगा हुआ है एक्सपो, यहाँ पर बहुत सारी जो मशीन्स भी हैं और कुछ जो है आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस टाइप के जो स्टॉल्स वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं, शूज़ वगैरह दिखा रखे हैं जो भी होते हैं अलग अलग ब्रांड के। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन का है, एक्सन का है, यहाँ पे एक्सन का लगा हुआ है। इस साइड में आप देख सकते हैं एक्सन का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, और इधर लगा हुआ है यहाँ पे एशियन का लगा हुआ है। तो इस तरह के कुछ आपके जो है ब्रांड के स्टॉल भी लगे हुए हैं। और ये हॉल नंबर 6 पे है। दूसरे हॉल पे हॉल नंबर 5 पे वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल वाले हैं, यहाँ पे जो है मशीनरी वाले हैं। तो 2 हॉल में लगा हुआ है, एक में मशीनरी और एक में आपका जो मटेरियल और बाकी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें, केमिकल्स वगैरह, उन सब चीज़ों के स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ लोगों से बात करा दिया। अब जो है दूसरे हॉल में भी जाके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, इस तरीके के जो चप्पल वगैरह बनते हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अभी हम दूसरे हॉल में आ गए हैं, हॉल नंबर 5 में। तो यहाँ पर आपको जो भी दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं फुटवेयर इंडस्ट्री में वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप इटालियन टेक्नोलॉजी बॉन्डिंग वगैरह है, विक्टर। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग की केमिकल्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें की, वो चीज़ों की जो कंपनियाँ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो वो मटेरियल वाले होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो फैब्रिक वगैरह होता है, जो भी चीज़ होता है उसका मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पॉइंट एडहेसिव, तो इनका यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। तो जो भी इंडस्ट्री में चाहिए होता है, फुटवेयर इंडस्ट्री में, वो सब मिल जाएगा। इसके अलावा आगे देखते हैं। अभी पिछले वाले हॉल में मैंने जो आपको मोल्डिंग मशीन दिखाया था, जो वहाँ पर इसी तरीके के जो दाने होते हैं यही सब डलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक कंपनी है, सर की कंपनी है, जो यहाँ पे AP प्लास्टिक्स करके, तो इस तरीके के जो रबड़ के दाने होते हैं, जैसे जो आपके प्लास्टिक के दाने होते थे दोस्तों, मैंने आपको मोल्डिंग मशीन के बहुत सारे दिखाएं, उसी तरीके के ये दाने हैं, लेकिन ये जो है आपके प्लास्टिक के दाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कलर के हैं। ये ऐसे टच करने पे भी ये रबड़ जैसा ही लग रहा है। तो रबड़ के इस तरीके के दाने हैं आपके। तो हर कलर के, जिस कलर का आपको बनाना है, जो भी शोल वगैरह होता है या जो शूज होता है, तो ये दाने उस मशीन में डालेंगे और वो आगे आपका मोल्ड करके आपको जो फुटवेयर है वो निकाल देगा। तो इस तरीके की जो मटेरियल वाली स्टॉल्स हैं वो इसमें आ रखी हैं हॉल नंबर 5 में। तो अगर आपको इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर जो कंपनी का नाम है वहाँ पे आप देख सकते हैं AP प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड पे आप देख सकते हैं AP प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ PVC कंपाउंड एंड मास्टर बैचेज। तो ये कंपनी है, इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप जो है नेक्स्ट स्टॉल पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दूसरी कंपनी है, तो ये क्या करते हैं, इस तरीके की जो भी आइटम्स होते हैं ना दोस्तों, ये सब चीज़ें जो फीते होते हैं चप्पल के, ये सब चीज़ें ये बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे डिज़ाइन के आपको फीते मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बहुत सारा है, इस तरीके के आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो रबड़ के जो भी होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरीके की डिज़ाइन वाली चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है ये कंपनी बनाती है, और मैं आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। और इस तरीके की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कंपनी का आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको इनके पास मिल जाएंगे इस तरीके की, काफ़ी बढ़िया। तो जो कंपनी का नाम है नंदी फुटवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसके बारे में आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ये सब चीज़ें ये बनाते हैं। तो इस हॉल में आपको इसी तरीके की चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। जो भी रॉ मटेरियल है वो सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है एक श्रीमान, इस तरीके की आपको जो चीज़ें हैं वो आपको सब यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये सब जो रॉ मटेरियल यूज होता है शू इंडस्ट्री में, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं इस तरीके के जो चूज़ द राइट लेदर, इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं, जो सब चाहिए होते हैं, वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इधर भी कुछ कंपनी है जिन्होंने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं। ये भी फैब्रिक वाली कंपनी है जिन्होंने अपनी लगा रखा है। टीम एशिया, हाँ टीम एशिया ग्रुप है, इधर भी इन्होंने लगा रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप इनसे यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने आपको पूरा एक्सपो विजिट कराया। यहाँ पर हॉल नंबर 6 में 2 हॉल पे लगा हुआ है, हॉल नंबर 6 और 5, इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर। तो हॉल नंबर 6 में आपको सारे मशीनरीज मिल जाएंगे, बहुत सारे मशीनरीज का कंपनी मिल जाएंगे। और हॉल नंबर 5 में जो भी मटेरियल होता है, आपका जो दाने होते हैं और जो फीते होते हैं, जो फैब्रिक वगैरह जो भी यूज होता है, उन सब का आपको यहाँ पर स्टॉल्स मिल जाएगा। अगर आप फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको इस एग्जीबिशन में ज़रूर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आज कल और परसों 3 दिन के लिए लगा हुआ है। 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त 3 दिन तक ये चलेगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, आपके काम आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।